Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. Friends, today is 3rd February, and I'm sure even you would have made good profit today as the market has been, you know, rallying up, and it's been a third day of the up rally. Let's estimate the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones, along with the trading plan for the next trading day, right? And tomorrow is a special day as it is Thursday and 4th February. Tomorrow is a weekly expiry of index options. Index option means Nifty and Bank Nifty के option की expiry है कल. So obviously market will be volatile. So you need to understand the scenario of the market, the data and the price action clearly such that you can trade the market profitably. Well, before that, if you are new to our YouTube channel, friends, do consider subscribing this and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification. And there are plenty of videos which you have created for our trading community. So be generous to share these videos with your friends and trading communities so that they can get benefit from them. Right now, let's look at the daily chart of Nifty and Bank Nifty today and see how the market had been performing. So Nifty as well as Bank Nifty today opened gap up, taking cues from the global market. And almost the first 1 hour of the market, we saw the sell-off, and uh, it was a range-bound market, right? And at the lower levels, the buying emerged. And as I've said in my yesterday's video, that at higher levels, you will see the profit booking. That's precisely what happened today. And of course, at the lower level, the buying interest developed, right? Now, अगर हम बात करें आज के sectors की, almost all the sectors except reality and FMCG were running up. And ओवरऑल अगर बात करें तो मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव रही. ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स एडवांस्ड एंड 10 declined from the stack of Nifty 50. Power Grid, Divi's Lab, Coal India, Dr. Reddy, and IndusInd Bank were the 5 top contributor of Nifty 50. And जो loser थे वो थे Shree Cements, UPL, Ultra Cement, Maruti, Grasim. निफ्टी ऑलमोस्ट 107 पॉइंट्स के गैप के साथ स्टार्ट हुई एंड इट क्लोज्ड एट 14,790 with a gain of 0.97%, which is in term of 142 points, right? So 142 points मतलब positively close हुई. ओपनिंग नीचे थी और क्लोजिंग ऊपर थी. अब बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी started with a 288 point gap. Of course, it saw a volatility in the first NR, and it closed at 34,758 with a net gain of 491 points. Both of indices after the first are being bullish. ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड बना रहे हैं, हायर हाई एंड हायर लो चल रहा है दोनों में, एंड अप ट्रेंड कंटिन्यूज. एंड अगर single candlestick की बात करें तो the candlestick what they have made today resembles with the hanging man, and that's a kind of potential reversal pattern at the top or in the distribution zone. So इस चीज को आप थोड़ा नोटिस करें, because that's very crucial when the markets are running high, and if the markets are in overbought zone or in the distribution zone, you might see the corrections in that, right? Of course, at the end of the session we'll be looking at that aspect of it, the kind of bias the market is giving. But at this point of time, let's look at what kind of support and resistance levels you may see in Nifty tomorrow. So 14,730 is the first level of support, 14,648 second level of support, friends. थर्ड लेवल है 14,578, अगर 578 का लेवल टूटता है देन 14,470 ऑन डाउन साइड इन निफ्टी यू विल गेट द सपोर्ट. अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस आज का हाई है विच इज 14,865, 14,900 सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, 14,950 थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड अगर 14,950 टूटता है इन दैट केस 15,000 इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. So roughly we can say 14,470 से 15,000 की रेंज कल की निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है, राइट? और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट अवेलेबल है 34,508 पे, पहला सपोर्ट जो कि आज का ओपनिंग प्राइस था. सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट है कल का क्लोजिंग प्राइस विच इज एट 34,268. थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है 34,000
23 पे जो कि आज का लो है, एंड फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट अवेलेबल है 33,775 पे। अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में जाने की कोशिश करती तो बैंक निफ्टी को पहला लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 34,904 पे, जो कि आज का हाई है। 35,000 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर 35,000 का लेवल टूटता फ्रेंड्स, देन यू माइट सी 35,225 and 35,390 emerging as third and fourth level of resistance. So roughly we can say that 33,775 से 35,390 के रेंज में कल आपको बैंक निफ्टी ट्रेड होते हुए दिखेगा, राइट? Now let's look at the data points, right? Data points will also be telling you a kind of support and resistance levels which would have been created due to call and put writing by bulls and bears, right? Bulls will be writing puts and bears will be writing calls. So since market closed at 14,780, तो 14,800 को हम एट द मनी लेंगे, एंड दिस इज अ 4th February एक्सपायरी ऑप्शन चेन वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो नाउ 14,800 के आसपास में फ्रेंड जो हमको दिखाई दे रहा है, 14,800 को अगर हम एट द मनी लेते हैं, यू कैन सी दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पुट्स फ्रेशली रिटर्न 16,000 के आसपास में, 16,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. That is going to work as a support one in case if Nifty lands above than that. सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट हमको जो दिख रहा है फ्रेंड्स, वो दिख रहा है 14,700 का, वेयर 22,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओवरऑल 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 33.4 थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर ये लेवल टूटता है, 14,600 का लेवल है जहां पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ओवरऑल, हालांकि फ्रेश पुट राइटिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई है. ऑफ कोर्स ये सब अगर लेवल नीचे के साइड में टूटेंगे तो देन फाइनल लेवल आपके पास में 14,500 का. एट दिस लेवल यू कुड सी 36,000 ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स है. चांसेस कम है ये लेवल पे जाने का, क्योंकि जिस हिसाब से फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 14,700 पे और 14,800 पे, ऐसे लगता है 14,700 शायद ना टूटे, बट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 14,500 पे. तो कल के लिए ये लोअर लेवल है और क्रूशियल लेवल है. नाउ अगर बात करें हम कॉल्स की फ्रेंड्स, तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है लोअर लेवल पे, विच इज वेरी नेचुरल व्हेन द मार्केट इज रनिंग अप लाइक दिस, राइट? However, 14,800, which is a tad above than the closing price, will act as a R1. As you can see that although fresh call writing तो नहीं हुई है वहां पर, but 27,000 contracts है. R2 will be 50 points above than that, 14,850 पे, क्योंकि यहाँ पे भी 22,000 या 22.7 thousand contracts दिखाई दे रहे हैं. 14,900 again is emerging as a very strong level of resistance, friends. Here as well, you would see 29,000 plus contracts here. However, the ultimate resistance जो हमको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 15,000 का, जहां पे कि 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हैं और यहाँ पे 10,000 फ्रेशली कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है हायर लेवल पे. सो वी कैन से रफली हियर 14,500 से 15,000 की ट्रेडिंग रेंज हमको निफ्टी के लिए कल दिखाई दे रही है. अगर इस ऑप्शन चेन सीरीज के पीसीआर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 20% स्ट्राइक्स अप एंड डाउन. सो द ऑप्शन चेन का जो पीसीआर निकल के आता है, दैट इज समवेयर अराउंड 1.21. तो ये आपको एक बुलिश बायस दिखाता है. सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गिविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो. Let me open a option chain data of Bank Nifty. Now, since Bank Nifty close हुई है 34,758 पे, तो 34,800 को will be considering as ATM, right? तो ये ATM के आसपास में अगर आपको पहला लेवल ऑफ सपोर्ट देखना है फ्रेंड्स, तो वो है 34,500. सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट जो है, although almost all strikes are good support levels, but the maximum open interest is at 34,000, right? तो ये हमको जो है नजर आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे. और अगर अपर साइड में देखें फ्रेंड्स, तो अपर साइड में जो कॉल राइटिंग हुई है वो पुट राइटिंग से कहीं ज्यादा हुई है, और 35,000 के लेवल पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको बैंक निफ्टी में दिखाई देगा. और ये लेवल अगर टूटता है तो देन इन दैट केस 35,500 का लेवल है. हालांकि हर लेवल पे यहाँ पे हायर लेवल पे अच्छी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन with put writing. So roughly we can say that 34,000
से लेके 35,500 की रेंज हमको बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रही है। और जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है फ्रेंड्स 20% strikes ka, that is at 1.53. So that is a good bullish bias, right? Or that is also visible from these levels. क्योंकि अगर हम पुट एंड कॉल रेशियो से देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई पुट राइटिंग कितनी हुई है और कॉल राइटिंग कितनी हुई है, मतलब बुल्स एंड बेयर्स के इमोशंस का एक आइडिया मिलता है हमको। अगर हम आज बात करें प्रोविजनल डेटा की, सो FIIs were net buyers today as well. Yesterday they bought 6,182 crore worth equity in cash market, while as today they bought 2,521 crore. DIIs आज बहुत ज्यादा बड़े सेलर नहीं थे. They sold equities, net equities worth 400 crore in the cash market, right? And now you can understand the smart money is back in the market. That's what is driving the market upside. However, shouldn't forget that the smart money is ruthless money and it can move out of the market in a jiffy. So be careful when the markets are all time high. अगर हम आज यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट की बात करें या एशियन मार्केट की बात करें, आफ्टर फॉल डाउन फॉर ऑलमोस्ट 4 days, लास्ट 3 दिन से ये मार्केट्स भी अपसाइड में जा रहे हैं. सो बेसिकली कंसोलिडेशन के जोन में चल रहे हैं और अभी बुलिश बायस है, राइट? ऐसे लगता है कि अभी हमारे मार्केट से बाकी के मार्केट्स क्यूज ले रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम एशियन मार्केट या यूरोपियन मार्केट से क्यूज देखते हैं, राइट? सो अगर हम RSI की बात करें, आज निफ्टी का RSI 64 में आ गया, दैट्स बुलिश. एंड बैंक निफ्टी का तो ऑफ कोर्स बुलिश में था, बट मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन इन डेली एंड मंथली, while as it's in neutral zone for weekly. So अगर डेली में मार्केट ओवरबॉट जोन में आती है तो ऐसे में एक करेक्शन की संभावना बनती है. दैट शुडंट सरप्राइज यू. However, as long as 14,400 के ऊपर मार्केट है फ्रेंड्स, you can be rest assured that market is in a bull run, right? Now let's look at 15-minute chart and see how we can trade Nifty and Bank Nifty in a smaller time frames for tomorrow, right? जैसा मैंने कल मेरे वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होगी तो you would see the shorting opportunity precisely that happened today in Nifty as well as Bank Nifty. अगर हम बात करें जो लेवल्स मैंने कल दिए थे कि भाई अगर आपको 14,800 या 750 पे निफ्टी खुलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है, जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, दे वांट टू सेल एट हायर प्राइस, सो दैट्स वेयर दे स्टार्ट इट. ऑफ कोर्स जैसे मार्केट नीचे लेवल पे जाती है, बाइंग स्टार्ट होती है, बिकॉज दोज ऑफ द पीपल हु हैव मिस्ड आउट ऑन द रैली, दे वांट टू टेक द एंट्री, राइट? सो कल के लिए क्या करना है, अगर 14,730 से 14,865 के बीच में मार्केट ओपन होती है तो वेट फॉर हाफ एन आवर आफ्टर ओपनिंग एंड अलाउ ORC to be broken either side and trade accordingly. मतलब अगर अपर साइड में ORC ब्रेकआउट मिलता है तो देन योर टारगेट शुड बी 14,865, 14,900, 14,950 एंड 15,000, राइट? अगर ORC डाउन साइड में स्टार्ट होती है तो देन योर टारगेट शुड बी 14,730 एंड 14,648, राइट? सो ऐसे में करें क्या, ORC ब्रेकआउट हुआ, आपकी VWAP प्राइस के ऊपर है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी. अगर अपर साइड में ORC ब्रेकआउट होता है, आपकी सुपर ट्रेंड एंड VWAP डाउन साइड में है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड का. बट लॉन्ग साइड जाते वक्त ध्यान रखें RSI 60 के ऊपर होना चाहिए. शॉर्ट साइड जाते वक्त ध्यान रखें RSI 40 के नीचे होना चाहिए. एंड आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको जरूर देखें. नाउ बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स? बैंक निफ्टी के लिए अगेन वील सी wait and watch zone is 34,500 to 34,900, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का जोन है. काफी क्रूशियल जोन होएगा. इट कुड बी वोलेटाइल जोन टुमारो और इट मे बी रेंज बाउंड. तो ORC ब्रेकआउट की राह देखें और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डेफिनेटली फॉलो करें. ORC ब्रेकआउट के साथ में जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट लेती है, मार्केट को सस्टेन होने दें कम से कम 15-20 मिनट उस डायरेक्शन में. अगर सपोज करो कल भी मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, तो देन यू वुड सी प्रॉफिट बुकिंग 35,250 के आसपास में या 35,300 के आसपास में मार्केट चालू होती है, देन यू वुड सी मार्केट वुड बी कमिंग टू फिल अप दिस गैप एंड 34,758 डाउन साइड में आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का एक टारगेट होना चाहिए. मार्केट अगर गैप डाउन स्टार्ट होती है, लेट्स से 34,268 पे या 34,000
50 के आसपास में, तो देन यू विल सी बाइंग इंटरेस्ट इन दैट केस। अगर ओआरसी अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है आपको और वीवैप एंड सुपर ट्रेंड डाउन में है, मतलब प्राइस से नीचे है, तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। एंड आपके टारगेट होंगे क्या, 32,300, 34,300, 34,500 एंड 34,900। तो ये अपसाइड के टारगेट आपके बन जाएंगे। दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड राइट नाउ। क्योंकि कल ऑप्शन एक्सपायरी भी है, मार्केट वोलेटाइल रहेगी, ऐसे में यू नीड टू बी केयरफुल राइट। एंड पॉसिबली अगर आपको हेजिंग करना आता है तो अपनी फ्यूचर या ऑप्शन की पोजीशन को हेज करके चले राइट। अदरवाइज इक्विटी में स्मॉलर क्वांटिटी के साथ में ले, देन फ्राइडे विल बी बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट। अगर आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते हैं, अगर आप नोविस ट्रेडर हैं तो राइट। सो कल की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज हमको समझ में आ रही है फ्रेंड्स, वो है 14,500 से 15,000 की फॉर निफ्टी विद अ पॉजिटिव बायस, 34,000 से 35,200 की जो रेंज है वो है बैंक निफ्टी के लिए, अगेन हाई वोलेटिलिटी पॉजिटिव बायस के साथ में। As the market is in overbought zone in weekly, on daily and monthly, so a small correction or consolidation shall not surprise you. Always look at the cues from the global markets or option chain data. Option chain data आपको एक fresh व्यू देता है बुल्स एंड बेयर्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखना न भूलें, एंड अलोंग विद दैट ऑल्सो यूज इंडिया विक्स का चार्ट। सो बोथ इंडिया विक्स एज वेल एज यूएसडी आईएनआर का चार्ट आपके रिवर्स होता है, आपके चार्ट के रिवर्स में होता है, मतलब निफ्टी ऊपर तो वो नीचे जाएंगे, और अगर नहीं हो रहा, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो निफ्टी में ऑल्सो कंसोलिडेट। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट सच दैट यू कैन नेविगेट थ्रू द market properly. I hope with this analysis, friends, you are becoming profitable and confident trader. Thank you very much for watching the video. To get latest information, please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon. There are many videos we have created for our community, so be generous to share the videos with your friends and trading communities. Good luck, happy trading, happy investing, friends.